بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنسپل آف کامرس اصول تجارت کے ویڈیو لیکچرز کی سیریز میں اس لیکچر میں ہم فارن ٹریڈ یعنی بیرونی تجارت اور ایکسپورٹ پروموشن بیورو EPB پاکستان کے حوالے سے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پاسٹ پیپرز میں ہمیں ملتے ہیں اس ٹاپک سے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ کسے کہتے ہیں۔ ٹریڈ بنیادی طور کے اوپر لین دین کا نام ہے، خرید و فروخت کا نام ہے۔ The word trade implies an exchange of goods and services for money or for the other goods and services۔ تو ٹریڈ کا مطلب ہو گیا اشیاء کا تبادلہ اور خدمات کا تبادلہ فار منی، پیسے کے بدلے میں۔ اب یہ پیسے کے بدلے میں بھی ہو سکتی ہیں اور اشیاء کے بدلے اشیاء یا سروسز بھی ہو سکتی ہیں، جن کو ہم خدمات کہتے ہیں۔ تو اس میں لین دین ہوگا۔ اب اگر یہ لین دین ود ان کنٹری ہو رہا ہے تو اس کو ہم ڈومیسٹک یا ہوم ٹریڈ، گھریلو تجارت کہیں گے ہم۔ اور اگر یہی ٹریڈ دوسرے ملک ہو رہی ہے، فارن کنٹری میں ہو رہی ہے، وہاں سے سامان منگوایا جا رہا ہے، وہاں سامان بھیجا جا رہا ہے، تو اس کو فارن ٹریڈ کہا جائے گا۔ دوسرے ملک سے سامان جب منگوایا جاتا ہے، پاکستان میں اگر ہم دوسرے ملک سے سامان منگوائیں گے تو اس کو امپورٹ ٹریڈ یعنی درآمد کہتے ہیں، درآمدات کہتے ہیں۔ اور اگر سامان پاکستان سے دوسرے ملکوں کو بھیجا جائے گا تو اس کو ایکسپورٹ ٹریڈ یعنی برآمدات کہتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، لیکن پاکستان سے جو چیز سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ہے ٹیکسٹائل گڈس۔ اس کے علاوہ سرجیکل آئٹم، اسپورٹس گڈس اور مختلف قسم کے پھل بھی پاکستان سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، جو دوسرے ملکوں میں خصوصی طور پر گلف ایریاز اور یورپین کنٹریز اور اس کے علاوہ امریکہ میں پسند کیے جاتے ہیں۔ امپورٹ کے حوالے سے، درآمدات کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان دوسرے ممالک سے مختلف چیزیں امپورٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر پاکستان پیٹرولیم پروڈکٹس کی ایک بڑی مقدار امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چائے پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مشینری اور مختلف ٹیکنالوجیکل آئٹمس جو ہے پاکستان میں امپورٹ کی جاتی ہے۔ ڈومیسٹک ٹریڈ اور فارن ٹریڈ میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق فاصلے کا ہے۔ ڈومیسٹک ٹریڈ ایک ملک کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں۔ فارن ٹریڈ دوسرے ملک کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ لینگویج کا ڈفرنس آئے گا، چونکہ پاکستان میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں اردو بولی جائے گی، لیکن اگر پاکستان میں تجارت ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ تو وہاں انگریزی بولی جائے گی۔ گلف ایریا کے ساتھ ہو رہی ہے تو عموماً وہاں پر عربی بولی جائے گی۔ تو لینگویج کا فرق آئے گا۔ اسی طرح کلچرل ڈفرنس ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم تجارت کریں گے تو یہاں پر کلچر کا ڈفرنس ہوگا، لیکن معمولی ہوگا، انڈرسٹینڈیبل ہوگا، ایک دوسرے کی سمجھ کا ہوگا۔ لیکن اگر دو ملکوں کی درمیان تجارت ہو رہی ہوگی تو اس میں جو ثقافتی فرق ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ٹیکنالوجیکل ڈفرینسز بھی ہوں گے۔ ٹیرف یعنی کہ مختلف جو ٹیکسوں کے نظام ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے۔ ایک ملک میں تو ایک ہی رہیں گے، لیکن دوسرے ملکوں سے کی جائے گی تو وہاں پر پھر مختلف ہو جائیں گے۔ ڈاکومنٹیشن الگ الگ ہوگی، ہر ملک کے قوانین الگ ہوتے ہیں، پیمنٹس کے معاملات الگ ہوتے ہیں، کرنسی کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اور یقیناً ٹرانسپورٹ اور انشورنس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی فارن ٹریڈ کے اندر۔ جب فارن ٹریڈ کی جاتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے ایکسپورٹ اور دوسرا کہلاتا ہے امپورٹ۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ایکسپورٹ کیا جائے گا یعنی پاکستان سے سامان اگر دوسرے ملک میں بھیجا جانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے سیدھا اسٹیپس کیا ہوں گے۔ جب بھی پاکستان سے کوئی سامان ایکسپورٹ کیا جانا مقصود ہوگا تو اس کے لیے یہاں پر موجود ایکسپورٹر کو، برآمد کنندہ کو سب سے پہلے کوئی کوئری آنی چاہیے ہے، جو دوسرے ملک سے اگر کوئی شخص کوئی سامان منگوانا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر موجود ایکسپورٹر سے بات کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ وہ سامان جن کے پاس اویلیبل ہے ان سے بات کرے گا وہ، اور پھر وہ ان کی تفصیلات لے گا، کوانٹٹی کیا اویلیبل ہے، پرائس کیا اویلیبل ہے، کلر کیا اویلیبل ہے، سائزز کیا اویلیبل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بیرون ملک لوگ ہوں گے وہ پاکستان میں موجود شخص سے ان تمام چیزوں کے متعلق پوچھے گا۔
जब दूसरे मुल्क में मौजूद शख्स अपनी इस चीज़ का इत्मीनान कर लेगा तो फिर इसके बाद वो वहाँ से एक ऑर्डर भेजेगा। ये ऑर्डर मिलने का मतलब ये है कि अब एक्टिविटी का आगाज़ होगा, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर होगा उसको अब लाज़मी तौर के ऊपर लाइसेंस चाहिए होगा, जिसको एक्सपोर्ट लाइसेंस कहा जाएगा। एक होगा एक्सपोर्ट लाइसेंस और फिर होगा उस चीज़ को भेजने का लाइसेंस। तो ये लाइसेंसेस यहाँ पर हासिल करने की एक्सपोर्टर कोशिश करेगा। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस होंगी उस पर भी जो पाकिस्तान में जब मामला होगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ उसूल होंगे, रेगुलेशंस होंगी, उन रेगुलेशंस को मानना होगा। यानी जब पेमेंट आएगी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर तो वो उस मुल्क की करेंसी में आएगी जो कि उमूमन डॉलर में आती है, और रेगुलेशंस के मुताबिक ये जितना भी फॉरेन रिजर्व होगा, फॉरेन करेंसी होगी, ये स्टेट बैंक होल्ड कर लेगा और उसके इक्वलेंट पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के हवाले करेगा। इसके अलावा एक एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट एतबारी खत का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो कि फॉरेन ट्रेड में लाजमी बनाई जाती है। ये दरअसल उस शख्स को बनानी होगी कि जो कि सामान मंगवा रहा है अपने मुल्क में। यानी अगर कोई अमेरिका से सामान मंगवाना चाहता है पाकिस्तान से, तो यानी पाकिस्तान से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ का जो शख्स है जो कि सामान को भेज रहा है, जिसको हम एक्सपोर्टर बरामद कुरंदा कहेंगे, उसको अपनी पेमेंट की फिक्र होगी कि जब मैं सामान यहाँ से भेजूंगा तो मुझे उसकी पेमेंट चाहिए है। इसके लिए वो तकाजा करेगा अमेरिका में मौजूद शख्स से जो कि अपने मुल्क में सामान मंगवा रहा है, इंपोर्टर है, वो वहां का दरामद कुरंदा है, उससे एक गारंटी मांगी जाएगी। ये गारंटी वो अपने बैंक के थ्रू पाकिस्तान भेजेगा। ये एक लेटर होगा जिसमें बैंक दरअसल अपने उस शख्स की ये जमानत लेगा कि सामान मिलने की सूरत में पेमेंट कर दी जाएगी। इसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद एक्सपोर्टर को चाहिए होगा। इसके बाद सामान की पैकिंग और उसके दूसरे मुल्क फॉरवर्ड करने का अमल शुरू हो जाएगा। एक इनवॉइस तैयार होगी जिसमें सामान की मुकम्मल डिटेल, कंडीशंस, प्राइजेस, वेट, हर चीज़ मौजूद होगी। इसकी बुनियाद के ऊपर सामान को शिप किया जाएगा। शिप का जो भी तरीका हो सकता है, बहरी, बर्री, हवाई, जो भी तरीका हो सकता है, उस तरीके से सामान की शिपमेंट होगी। इसके अलावा एक बिल ऑफ लेडिंग होगी। ये बिल ऑफ लेडिंग वो डॉक्यूमेंट है कि जब सामान को शिप पर चढ़ाया जाता है तो जो शिप का कैप्टन होगा, मास्टर ऑफ द शिप होगा, वो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सपोर्टर के हवाले करेगा जिसने सामान की शिपमेंट की है, और ये एक सबूत होगा कि सामान को शिप कर दिया गया है, और इसी की बेसिस पर अभी एक्सपोर्टर को पेमेंट होगी। इस वक्त इसको इंश्योरेंस करवानी होगी ताकि अगर सामान को रास्ते में कोई भी इशू होता है तो वो बीमा के जरिए अपने नुकसान का इजाला कर सके। यहाँ तक कि सारे मामला जो भी हो चुके हैं वो अब एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है कि तमाम चीज़ें इंपोर्टर के इल्म में लेकर आए कि सामान को शिप कर दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इंपोर्टर के हवाले की जाएंगी। वहां पर सामान पहुंचने के बाद जो पेमेंट होगी उस पेमेंट को रिलीज करवाया जाएगा। ये सारी पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए होंगी। इसके अलावा बिल ऑफ लेडिंग भी यहाँ पर मौजूद है, और फिर फाइनली जो इंपोर्टर होगा वो वहां से एक रसीद भेज देगा जिसके जरिए वो इस बात को कंफर्म करेगा कि उसने सामान को रिसीव कर लिया है। तो ये वो पूरा प्रोसीजर है कि जिसके जरिए सामान को पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में सामान को इंपोर्ट करना मकसूद है, दरामद करना है, दूसरे मुल्क से सामान अब यहाँ मंगवाना है, तो इसका भी एक तरीक़ेकार होगा, एक प्रोसीजर होगा। यकीनन जो पाकिस्तान में मौजूद शख्स है जो कि इंपोर्ट करना चाहता है उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी पाकिस्तान के अंदर एज ए इंपोर्टर। इसके अलावा उसको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि वो अपनी इंपोर्ट के काम को कानूनी शक्ल दे सके। इसके बाद वो एक ऑर्डर करेगा दूसरे मुल्क में जहां से सामान मंगवाना है, वहां वो एक ऑर्डर भेजेगा। ऑर्डर भेजने के बाद फॉरेन एक्सचेंज का बंदोबस्त होगा यहाँ पर, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो तो पेमेंट पाकिस्तानी करेंसी में करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके बदले में जो डॉलर्स होंगे या कोई और बैरूनी करेंसी होगी, फॉरेन एक्सचेंज होगा, वो वहां पर दूसरे एक्सपोर्टर को जो कि सामान भेज रहा है पाकिस्तान में उसको उस शक्ल में अदायगी करेगा।
इसी तरीके से अब यहाँ से चूंकि सामान जा रहा है, पाकिस्तान से सामान जा रहा है, तो अब पाकिस्तान में जो शख्स जो पाकिस्तान में अब सामान चूंकि आ रहा है, तो अब जो पाकिस्तान में मौजूद शख्स है जो कि सामान को मंगवा रहा है, अब उसको पेमेंट की गारंटी देने के लिए एक एलसी अपने बैंक अकाउंट से तैयार करनी पड़ेगी। वो अपने बैंक जाएगा और एक एलसी तैयार करेगा और ये एलसी जो है वो अपने एक्सपोर्टर को फराहम करेगा। अब जो इम्पोर्टर है उसको अब वेट करना पड़ेगा। एक वहां से एक्सपोर्टर जब सामान को शिप कर देगा तो वहां से कुछ रसीदें आएंगी कि सामान की शिपमेंट हो गई है। इसके बाद जो भी पेमेंट होनी है वो पेमेंट के मामलात को देखे जाएंगे और सामान जो है वो इम्पोर्टर के पास आ जाएगा, वो इसको शिपर से रिलीज करवाएगा। तो ये वो तरीक़ेकार है कि जो कि सामान जब पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाएगा तो वो इस रास्ते से इंपोर्ट होगा। जब भी इंपोर्ट की एक्सपोर्ट होती है, फॉरेन ट्रेड होती है, तो ये वो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होंगी। मिसाल के तौर पर एक ऑर्डर की रसीद होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी होगा, एतबारी खत होगा, एक शिपिंग ऑर्डर होता है, डॉक रिसीट होती है। डॉक रिसीट का मतलब कि जो शिप है वहाँ से एक रसीद मिलती है, उसको डॉक रिसीट कहा जाएगा जब सामान को चढ़ा दिया जाएगा। इसी तरीके से मेट रिसीट है जो कि कैप्टन देगा। बिल ऑफ लेडिंग है जो कि सामान के चढ़ने के बाद मुकम्मल तफसील उसके अंदर लिखी हुई होगी। एयरवे बिल हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, इनवॉइसेस हो सकती हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि वो सामान जिस जगह से शिप किया जा रहा है तो वहाँ की तफसीलात होंगी। इसी तरीके से इंपोर्ट लाइसेंसेस हो सकते हैं, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस हो सकते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो कि इस्तेमाल होंगी फॉरेन ट्रेड के अंदर। ये समझ लेने के बाद कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह से होती है, पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फ़रोग़ के लिए और एक इदारा बनाया गया था जो कि 1963 में बनाया गया था। इसका बुनियादी मकसद बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाना था और वो कौन सी बिजनेस कम्युनिटी जो या तो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है। इसको ईपीपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का नाम दिया गया है। और बाय 2000 एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के तकरीबन कोई मुख्तलिफ मुल्कों में 40 ऑफिस बनाए जा चुके हैं। इस ब्यूरो का बुनियादी मकसद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इजाफा करना है। इस बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होगा और फिर एरिया ऑफिस होंगे और इसको जो चेयरमैन होता है वो बेसिकली हेड करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में चलने वाला एक इदारा होगा पाकिस्तान के अंदर। इसका बुनियादी काम क्या है? फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना कि कहाँ पर चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जा सकती हैं। इसी तरीके से एग्जीबिशंस लगाना ताकि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को फ़रोग़ दिया जा सके। इसी तरीके से डेलीगेशंस बाहर भेजे जाते हैं, वफूद भेजे जाते हैं ताकि नई नई मार्केटें तैयार की जा सकें और ये एक्सपोर्टर को हेल्प की जाती है। एक्सपोर्टर को मुख्तलिफ किस्म की क्या हेल्प हो सकती है? इनको एडवाइजरी सर्विस दी जाती है, गाइड किया जाता है दूसरे मुल्कों के मुतालिक, क्योंकि तमाम एक्सपोर्टर्स को दूसरे मुल्कों के मुकम्मल हालात का इल्म नहीं होता है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं और ISO जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुतालिक एक्सपोर्टर्स को बताया जाता है। इनकी सर्विसेज गवर्नमेंट को भी होंगी। गवर्नमेंट को भी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो मुख्तलिफ किस्म के खिदमात फराहम करेगा, रेगुलेशंस बनाएगा कि एक्सपोर्ट की क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए हैं, मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को और हुकूमत को गाइड करेगा। नेगोशिएशंस अगर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई इशू आ गया है तो उसको भी यही रेक्टिफाई करेगा, गवर्नमेंट को बताएगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश की, साथ ही साथ हमने ये समझा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंप्लीट प्रोसीजर्स क्या होते हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का क्या किरदार है।